Jai Hind students. So now we are going to start with the rest of the question of 11.2 exercise. Introduction video already I have circulated among you, and now in that video I completed question number 1 to 7. Now from question number 8, find the vector and the Cartesian equation of the line that passes through origin and 5 minus 2 3. So we know that the equation of line that passes through 2 points are r vector is equal to a vector plus lambda time b minus a vector. So let how to find out vector and Cartesian form. Let a vector and b vector are the position vector of the line. सो ए वेक्टर की जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आएगी, ओरिजिन है 0 i कैप प्लस 0 j कैप प्लस 0 k कैप, एंड बी वेक्टर की वैल्यू आ जाएगी 5 i कैप माइनस 2 j प्लस 3 k कैप. नाउ वी नो दैट की इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स. सो वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन passing through two points is क्या होती है, r vector is equal to a vector plus lambda time b minus a vector. Clear? Put the value r vector is equal to a vector, तो ये सारा जीरो हो गया, no need to write, प्लस lambda time b minus a, 5 minus 0 5 i cap minus 2j plus 3k cap. Okay, now r vector क्या होता है, this is the vector equation. Now we have to convert in Cartesian form. So Cartesian form में convert करेंगे. How to convert? r vector की वैल्यू क्या आ जाएगी, x i cap plus y j cap plus z k cap. इस तरफ 5 लैम्डा आई कैप माइनस 2 लैम्डा जे कैप प्लस 3 लैम्डा के कैप. क्लियर? हम इसको डिवाइड कर देते हैं. x लैम्डा की वैल्यू कंपेयर कर लो, x अपॉन 5 इज इक्वल टू y अपॉन माइनस 2 इक्वल टू z अपॉन 3 इक्वल टू लैम्डा. सो तो कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट आ गई, x माइनस 5 x upon 5 sorry y upon minus 2 z upon 3. So this is the Cartesian equation and this is the vector form of this line which passes through 2 points. Pause the video to note down. Question number 9 is same as question number 8. Find the vector and Cartesian equation of the line that passes through the points this and this. So equation of line which passes through 2 points, we know that. So let a vector and b vector be the position vector of point, or you can say line point 3 minus 2 minus 5 and 3 minus 2 6 respectively. सो ए वेक्टर हमारे पास आ गया 3 i कैप माइनस 2 j कैप माइनस 5 k कैप, एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू 3 i कैप माइनस 2 j प्लस 6 k कैप. नाउ इक्वेशन ऑफ लाइन पासेस थ्रू 2 पॉइंट्स, तो वो आ जाएगा r वेक्टर फॉर्म में, r वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम b माइनस a वेक्टर. क्लियर हो गया? सो पुट करते हैं, दिस इज इन वेक्टर फॉर्म. ये वेक्टर इक्वेशन है. सो r वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर की वैल्यू 3 i कैप माइनस 2 j माइनस 5 k कैप प्लस लैम्डा टाइम b माइनस a 3 i माइनस 3 तो 0 हो गया, माइनस 2
प्लस 2 0 हो गया, 6 प्लस 5 यानी कि 11 के कैप, यानी आई और जे क्या हो गया, बिकम 0. अब नाउ दिस इज योर वेक्टर इक्वेशन. नाउ कन्वर्ट इन कार्टेशियन. नाउ कार्टेशियन इक्वेशन. यू कैन यूज डायरेक्टली द मेथड. आप डायरेक्टली मेथड भी यूज कर सकते हैं और इसको कार्टेशियन में कन्वर्ट भी कर सकते हैं. डायरेक्ट मेथड कैसा होगा वो मैं यहां लिख रहा हूं. x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1, z माइनस z2 अपॉन z1 अपॉन z2 माइनस z1. दिस इज द कार्टेशियन इक्वेशन पासिंग थ्रू ए 2 पॉइंट्स. तो आप या तो इसको कन्वर्ट कर लें या अगर हमें निकालना है तो हम इस वे से भी निकाल सकते हैं. दिस इज अप टू यू. ठीक है, तो कार्टेशियन इक्वेशन यहां पे x, ये x1 y1 z1 वो पॉइंट होते हैं जो पास करते हैं और ये drs होते हैं. सो ये पहला पॉइंट जो पास कर रहा है, दूसरा dr है. सो x ये 3 माइनस 2, सो x माइनस 3 अपॉन x2 माइनस x1 0, y माइनस तो ये प्लस हो गया अपॉन माइनस 2 प्लस 2 0 इक्वल टू z माइनस z1 तो ये आ गया z प्लस 5 अपॉन z2 माइनस तो 11. सो दिस इज योर कार्टेशियन form. Clear? So like this we can find out the vector and Cartesian form when 2 points are given which passing through the line. Pause. So come to most important question. Find the angle between the pairs of line. So this question have 2 parts. So first one is r vector is equal to this. Now what is the formula to find out the angle between 2 lines? So we know the formula. The formula is cos theta is equal to b1 dot b2 upon magnitude of b1 into magnitude of b2. This is the formula. So this is, if we will compare, हम कंपेयर करते हैं किसको, देखो लाइंस को कंपेयर करते हैं ऐसे, a वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम b1 वेक्टर. सेकेंड इक्वेशन है r इक्वल टू a2 वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम b2 वेक्टर. एंड दिस b1 एंड b2, दिस बोथ द, ये जो लाइन है दे आर पैरेलल टू द गिवन लाइन. ये b1 b2 क्या है, दे आर पैरेलल टू द गिवन लाइन. सो एंगल कैसे निकालते हैं, cos थीटा इज इक्वल टू b1 वेक्टर डॉट b2 वेक्टर अपॉन, ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में भी बताया है कि ये कैसे जनरेट होता है. cos थीटा की वैल्यू b1 डॉट b2 और मैग्नीट्यूड ऑफ b1 b2. क्लियर? सो नाउ जस्ट राइट डाउन द वैल्यू ऑफ b1 वेक्टर. b1 वेक्टर ये वाला होता है विच इज पैरेलल टू द लाइन, जिसको हम dr भी कहते हैं लाइन के, 2j प्लस 6k कैप. देन b2 वेक्टर क्या होगा, b2 वेक्टर इज इक्वल टू कितना होगा, b2 वेक्टर होगा i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप. नाउ पुट द वैल्यू, cos थीटा इज इक्वल टू b1 डॉट b2, 3 डॉट, यानी जैसे क्रॉस प्रोडक्ट होता है वैसे ही डॉट प्रोडक्ट होता है, आपने ये अच्छे से पढ़ा है. 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप डॉट i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ, तो अंडर रूट b1 3 का 9, 2 का 4, 6 का 36, अगेन 1 का 1, 2 का 4, 2 का 4. डॉट प्रोडक्ट करेंगे, 3i डॉट i 1 होता है 3 प्लस 4 प्लस 12 अपॉन 49, 49 का कितना आ गया 7, यहां बना 9, 9 का कितना आ गया 3, सो 16. ओके, 60 प्लस 3 19 अपॉन 21. सो थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 19 अपॉन 21 is the angle between these two given lines. So this is the procedure to find out the angle, and this b1 and b2,
दिस बोथ दे आर पैरेलल टू द गिवन लाइन, ये इस लाइन के पैरेलल, ये इस लाइन के पैरेलल. नाउ सेम हियर, नाउ कम हियर अगेन, हम क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ लाइन को लिखेंगे. इक्वेशन ऑफ लाइन इस फॉर्म में लिखी जाती, इस फॉर्म में लिखी गई है. b1 सेकंड है r वेक्टर इज इक्वल टू a2 प्लस म्यू टाइम, हाँ इसको म्यू कर लो, नो नीड टू राइट लैम्डा, म्यू टाइम b2 वेक्टर. क्लियर? ओके, नाउ b1 वेक्टर क्या होगा, i कैप माइनस j कैप माइनस 2k कैप. b2 वेक्टर कितना होगा, 3i कैप माइनस 5j कैप माइनस 4k कैप. Now when we have to find out the angle, let theta be the angle between given lines. और आप डायरेक्टली भी फॉर्मूला लगा सकते हैं, जैसे हमने यहां पे डायरेक्टली लगाया था. cos थीटा इज इक्वल टू b1 वेक्टर डॉट b2 वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b1 वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ b2 वेक्टर. सो b1 क्या है, ये i कैप माइनस j माइनस 2k कैप डॉट 3i कैप माइनस 5j माइनस 4k कैप अपॉन अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1 1 4, दूसरा 9 25 और 16. क्लियर? चलो, cos थीटा इज इक्वल टू i, सो ये 3 माइनस 1 माइनस 5, तो ये कितना आ गया प्लस 5, 4 2 जा 8 प्लस 8, नीचे आ गया 4 5 6 और यहां आया कितना 25, ये 16 प्लस 9 25 और 50, तो ये 25 प्लस 25 कितना बन गया 50. अच्छा 50 है तो 50 को हम क्या कर सकते हैं 5 अंडर रूट 2 लिख सकते हैं. तो ध्यान से देखो 5 अंडर रूट 2, 16 अपॉन 5 अंडर रूट, ये देखो ये कितना है 6 2 जा 12, तो फिर से 10, भाई 12 है तो 12 को मैं कैसे कर सकता हूं 2 6 जा 12, 2 3 जा, सो 2 अंडर रूट 3, सो बाहर 2 आया तो 10 हो गया, 2 5 जा 2 8 जा, सो योर आंसर इज 5 अंडर रूट 3. तो थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 8 upon 5 under root 3. So like this we can find out the angle between two lines. Clear? Pause the video to note down. Now come to problem 11. Here find the angle between the pairs of line. So this is same as it is question number 10, but the difference is that was in the vector form and this is in the Cartesian form. So we have a formula in Cartesian form to find out the angle. तो क्या होता है वो देखते हैं. सॉल्यूशन, सबसे पहले let theta be the angle between given lines. So theta आ गया एंगल जो है इन दोनों लाइन के बीच में. तो क्या फॉर्मूला होता है cos थीटा इज इक्वल टू a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ दिस फर्स्ट यानी a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर, देन a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस c2 का स्क्वायर. सो दिस इज द फॉर्मूला इन द कार्टेशियन फॉर्म. व्हाट इज दिस a1 b1 c1 एंड a2 b2 c2? दे आर द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द लाइन. जो डायरेक्शन रेशियो होते हैं लाइन के वो हैं ये. तो डायरेक्शन रेशियो कौन से होते हैं किसी भी लाइन के? ये नीचे वाले, दीज आर द डायरेक्शन रेशियोज. ऊपर वाले जो होते हैं वो होते हैं जो पॉइंट क्या कर रहे हैं, पास कर रहे हैं लाइन में से. तो डायरेक्शन रेशियो जब हम लिखेंगे यहां पे तो फर्स्ट वी हैव टू चेक ये जो एक्स वाई जेड है इसके साथ कोई नंबर तो नहीं है या कोई नेगेटिव साइन तो नहीं लगा. अगर ऐसा है तो हम उससे इस
इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे और फिर हम क्या लिखेंगे, drs लिखेंगे लाइन के। क्लियर? सो यहां पे ऐसा कुछ भी नहीं है, सो मैं लिख लेता हूं dr a1 इक्वल टू 2, उसके बाद b1 इक्वल टू कितना 5 और c1 इक्वल टू -3, देन a2 इज इक्वल टू -1, b2 is equal to 8 and c2 is equal to 4. Now put in the formula. Cos theta is equal to -2 plus 40 minus 12 under root 2 का स्क्वायर 4, 25 प्लस 4 कितना हो गया हमारे पास 29 प्लस 9 38। दूसरा 1 का स्क्वायर 1, 8 का स्क्वायर 64, 65 हो गया, 4 का स्क्वायर 16, 65 और 16 कितना हो गया 81 और 81, तो दिस इज 26 अपॉन 9 अंडर रूट 38। सो ये डिवाइड नहीं हो रहा, सो थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 26 अपॉन 9 अंडर रूट 38। क्लियर? So this is the angle between these two lines. Now come to this. इसका एंगल निकालना है, वही सेम प्रोसीजर है। सबसे पहले let theta be the angle between given lines. ओके, अब एंगल जब निकाल रहे हैं तो वही चीज cos थीटा की वैल्यू क्या लिखेंगे, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन अंडर रूट ऑफ a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर, a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस c2 का स्क्वायर। नाउ लिसन केयरफुली, ये फॉर्मूला बहुत जगह यूज करेंगे। अभी हम मान लेते हैं थीटा की वैल्यू π/2 हो जाती है, तो ये cos π/2 0 हो जाता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मतलब a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अगर 0 के इक्वल आता है, इट मींस दीज बोथ द लाइंस आर व्हाट, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। क्योंकि ये 90 डिग्री का एंगल बनाती है दोनों लाइन, तो दे आर परपेंडिकुलर। तो अगर परपेंडिकुलर प्रूफ करना हो तो हाउ टू प्रूफ, ऐसे इसको किसके इक्वल पुट करेंगे, 0 के इक्वल। चलो अब हम वैल्यू लिख लेते हैं, a1 इज इक्वल टू 2, b1 इज इक्वल टू 2, c1 is equal to 1, a2 is equal to 4, b2 is equal to 1 and c2 is equal to 8. Now put the formula, cos theta is equal to 8 plus 2 plus 8 under root 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 9। Okay, now here 4 का स्क्वायर 16, 8 का 1 का स्क्वायर 1 17, 8 का स्क्वायर 64, 64 प्लस 17 81। क्लियर? तो ये आ गया 18 अपॉन 3 इंटू 9, सो 9 2 जा 18, सो थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 2/3 इज द एंगल बिटवीन दीज टू गिवन लाइंस। Clear? So like this we can find out the angle whether the question is in vector form or whether it is in Cartesian form. Pause the video. So very important question of the exercise. Find the value of P so that both the lines are at right angle. यानी इन दोनों के बीच का जो एंगल बने वो क्या बने, cos 90, यानी 90 डिग्री बन रहा है। ठीक है, so we have to find out the value of P. सो बोथ द लाइंस आर परपेंडिकुलर, तो इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास कि इन दोनों के drs निकालो, उसका प्रोडक्ट करो और फिर उसका सम करके किसके इक्वल कर दो, 0 के इक्वल कर दो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट द drs, बट drs निकालने के लिए पहले इनको प्रॉपरली अरेंज करना पड़ेगा। प्रॉपरली अरेंज मैंने आपको बताया था कि एक्स वाई जेड के साथ कोई नंबर या कोई साइन नहीं होना चाहिए। अब यहां माइनस साइन है तो हेयर द इक्वेशंस आर, तो इसको चेंज करेंगे, मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये x -1 अपॉन -3 इज इक्वल टू
यहां पे 7 से y प्लस 2/2py7, क्योंकि 7 से डिवाइड किया तो 2 बना, नीचे भी डिवाइड करना पड़ेगा, ये ठीक है z माइनस 3/2। क्लियर। एंड सेकेंड इसको -7 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो -7 से करेंगे तो 1/3p/7 माइनस का, यानी -7 में कॉमन ले लूंगा। सेकेंड वन इट्स ओके, y माइनस 5/1। थर्ड अगेन माइनस से करना पड़ेगा, z माइनस 6/5। नाउ राइट डाउन द drs ऑफ बोथ द लाइन्स। सो drs ऑफ लाइन्स आर, ठीक है, a1 इक्वल टू -3, b1 इज इक्वल टू 2p/7 एंड c1 इज इक्वल टू 2। इसके a2 इज इक्वल टू -3/7, b2 इज इक्वल टू 1 एंड c2 इज इक्वल टू -5। नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला, कि हमें p की वैल्यू निकालनी है, जिसके लिए ये दोनों क्या है, दे कट एट राइट एंगल ट्राइंगल, सॉरी राइट एंगल। तो L1, लाइन L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, इट इंप्लाइज, इसको मैं L1 लिख लेता हूं, इसको L2 लिख लेता हूं, इट इंप्लाइज A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इज इक्वल टू 0। दिस इज द फॉर्मूला फॉर परपेंडिकुलर कंडीशन। क्लियर। चलो पुट करते हैं। सो यहां पुट कर दो, -3 इंटू -3p/7 प्लस 2p/7 इंटू 1 प्लस 2 इंटू -5 इक्वल टू 0। सो ये बन गया 9p/7 प्लस 2p/7 माइनस 10 इक्वल टू 0। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 7। तो ये बना 9 प्लस 2 11p माइनस 70/7 इक्वल टू 0। 11p इक्वल टू 70, so p is equal to 70/11. This is the value of p. So this is very important question according to paper point of view. Pause the video to note down. 13 question. Show that the line this and this are perpendicular to each other. So given lines are सबसे पहले यही चेक कर लेते हैं x y z के साथ कुछ है तो नहीं। x माइनस 5/7, y प्लस 2/-5, z/1, देन x/1 इक्वल टू y/2 इक्वल टू z/3। we have to prove कि they are perpendicular, and if two lines are perpendicular, we know that two lines are perpendicular. Two lines are perpendicular if क्या होता है, if a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 किसके इक्वल आ जाए, 0 के इक्वल आ जाए, तब हम कहेंगे क्या कि ये दोनों लाइन क्या है, परपेंडिकुलर है। एंड दीज आर व्हाट, दीज आर द dr ऑफ डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन। चलो देखते हैं। सो a1 कितना है इस लाइन का, 7, b1 -5, c1 1, a2 1, b2 2, c2 3। नाउ a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू, देखो 7, 5 2s are 10 plus 3, so this will become equal to 0. That is both the lines are perpendicular to each other. Clear? So they are perpendicular to each other. Pause the video to note down. And in this video I covered question from question number 8 to question number 13. So in this especially we studied about how to find out the angle between the Cartesian
using Cartesian method or vector method. So you have to solve all these questions. These are very simple questions. I hope you understood well. Till that, Jai Hind.